हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 6 जो कि ज्योग्राफी का है। इसमें आज हम करेंगे द वर्क ऑफ द मूविंग आइस, विंड्स एंड द सी वेव। इसका मतलब यही हुआ कि हिमानी पवन और समुद्री तरंगों के क्या कार्य होते हैं। तो इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये चैप्टर जो है कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई से पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड से पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो या बिहार बोर्ड के बच्चे हो। अगर उन्होंने ज्योग्राफी के चैप्टर लिया है, अगर उनके पास भी गोल है, तो इसका मतलब ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today I have a most important chapter doing here, the work of moving ice, winds and sea wave. There is a most important chapter. There is a come to the next point here, the most important here. A landforms are produced by the wind. There is the most important. The landforms produced by the wind. The wind action is a move to mineral particles when they are the dry state and are protected by the vegetation cover. That is the most important. These conditions are found in the desert and semi-maral regions of the world, as well as on the sandy shorelines. That is the most important here. And the first point arrive here, the erosion by the wind. The erosion by the wind here, there is the most important thing. The wind is ever formed three kinds of erosionally work: abrasions, attritions and deflations. The loose particles lying on the ground surface may be lifted into the air and rolled among the ground by the wind action. There is a along the ground by wind action, and in the process of wind aberrations and wind drives and the sand or dust particle against and the exposed rock or soil surface. When the wind is a violent, the material strikes against each other, they are reduced in a smaller particles, and this process is known as the attritions. What is the attritions here? When the wind is born, the material strike against each other, they are reduced in a smaller particles, and this process is known as the attritions. The removal of the loose particles from to the ground in the terminate is the deflations. There is a three types. There is a most important definition here. The removal of loose particles from to the ground is determinant to the deflations. That is the most important. The next here, the landform produced by the wind erosion. There is the most important here. Some of the topographically feature made by the wind erosions are follow. The mushrooms rock or rock predictor. When the rock is consisting of alternate a hard and soft layer are objected to the wind is a aberrations and differentially erosion results. The soft layer are easily eroded, but the hard layer has a resist erosions as a result of undercutting near the base. Due to the greater amount of sand and rock particle began transported close to the ground. The resulting of features resemble a rock pillar shaped like a mushroom. It is about it is called to rock pedestals and mushroom rock. Such as a formation are common in the Sahara Desert
and are also the seen near the Jodhpur. Here show the picture. There is a mushroom rock. Here show the mushroom rock that is shaped by mushroom. There is a most important rock here, mushroom rock. The next here, wind eroded basin. That is the most important. The wind eroded basins, a landform produced by the deflations is a shallow, and the shallow there is a depression called is a blowout. The equator, a depression is a Egypt is a Periphas is a finished example such a hollow. There is a most important diagram here show the wind eroded basins. The eroded and the reasons and wind eroded basins caused by the deflations. Show here picture. There is the hole on there reason causing by the deflation. There is the most important diagram here. The next here, transportation by the wind. There is the most important here, transportations by wind. Wind is an important agent of transportation in the arid region. The transported is a material is a sometime deposit in an area very far away from the place from where a dust particles has been to picked. The wind is blowing from to the Gobi's desert carry a dust to the northern part of China. In our country, also wind blowing from to the Thar desert, bearing a dust particle to the western Uttar Pradesh, and the adjoining part of him is a Haryana and Punjab. This transported is a material is a deposit in the fertilities plant of the Uttar Pradesh. The next here, deposition by the wind. There is the most important here, or deposition by the winds. Under contain or condition, the materials transported by the wind start getting deposited at the particular site along its running track. The condition of favoring it is are here is the most important point. The first here, when the amount of dust particles present in the air exceed its carry capacity, a part of the materials being to the transported is deposited, and this is the material which is exceeds of the transportation capacity of the wind. That is the most important here. And second here, when the speed of the wind is reduced, it is a carrying capacity is also reduced the materials in the suspension in thus the deposited. And third point here, when obstructions is come in the path of the wind, air has to be rise above this is a obstructions. When it is a rise, the velocity of the wind is reduced and it is a start dropping to the it's a load. And this material is deposited in the form of the mound at the foot of the obstruction. There is a most important 3 point here. There is the point here. The condition favoring its are here is a running track. The next here, landform produced by the wind deposition. There is the most important here. Some of the topographical features made by the wind deposition are flowing. The first here, sand dunes. The sand dunes here, sand dunes are a specially feature of the desert region. They are different types and have a variety of shapes. The major factor affecting their formation are amount of sand available. The second here, direction and force of wind. And third here, on obstruction in their path of the winds. Example, a versus a stone or the dead animal. There is a most important example here. A versus a stones and dead animal. As long as the wind is strong enough to carry the sand dune are mobile and they keep on the shifting from one place to another. If vegetation or a line of trees start is a growing on the dunes due to the become a fixed. They also become a standard when they are blocked by a hillock. There is the most important. They also become a standard when they are blocked by the hillock. In case there is no such obstructions and dune may be beauty agricultural land, plan and settlement. There is the most important here. In case there is no such obstructions, sand dunes may be berry agriculture land, plan and settlements.
So here there are two main types of sand dune. There is the most important here. There are two main types of sand dune. First here, Birchen. Birchen here, the one common types of sand dune is an isolated heap of free sand called a Birchen. The Birchen are also called as a crescentrix dune. These types of dune has the outline of crescent and the point of the crescent are directly downwinds on the upwinds side of the crest. The sand slope is gently and smoothly is rounded. They are found in a large number in the Sahara Desert. Here show the diagram here, Branchen and its a migration. First diagram is a wind here blow to the upside and there is the horns present in this. And second here, the future position of the branch, there is a wind directions and there are edges. There are branches and it is a migration. The second dunes here are Safed dune. There is the most important Safed dune. There are long, narrow ridges of sand that is a parallel to the direction of the prevailing wind. The wind is a below starting along. There is a corridors and between to the line of dune. The sweepings and corridors is a clear of the sand. The corridor is a clear of the sand, and however the areas set up in the winds below to about to the side of the corridors depositing and sand, and there is a form. This is a narrow elongated dunes, and sulfate dunes are common in the western part of the Thar Desert of India. There is the most important from the UPSC exam. There is a Thar Desert of the western part. Safed dune is a present. First diagram here show there is a most important. There is arrow shape. There is a dune is a sulfate dunes. There is the most important. And next here the second sulfate dunes here arrays and dominantes and wind direction. There is a wind direction here. A diagram show the clear of sulfate dunes in here. The next here is the losses. There is the most important losses here. In the several large area of the world, the surface is covered by the deposit of the wind transported slate that has settled out from the dust storm over is a thousand of the year. This material is known as the loose. There is the most important here, the loose. The loose is repeating here. In a several large area of the world, the surface is covered by the deposit of wind transported sludge that has settled out from the dust storm over many thousands of the year. This material is known as the loess. The loess is a tend to be a break away along the vertically clap, and whenever it is exposed by their cutting of a stem and gradings of a roadway. It is also very easily eroded by the running water and is subjected to the rapidly cooling when the vegetation cover that protect it is a break-in. And the thickest is a deposit of losses are the northernest China, and where is a layer over to the 30 meters deep in a common, and a maximum thickness of 100 meter has been to the measured. Besides the China, deposit of the loess occurred is a Mississippi Valley of North America and north of Central Europeans is the upland is the Germany, Belgium and France. Losses deposit are found to the Australia also. There is a most important point here. A depositional work of the wind result in a formation of the topographically feature like a sand dunes, branchen and Safed dunes and losses. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर आया है हिमानी पवन और समुद्री तरंगों के कार्य, इसके अंतर्गत जो अगला पॉइंट हमारा है वो है पवन द्वारा निर्मित असल कृतियाँ। देखिए पवन के द्वारा जो है कैसे जो है असल कृतियों का निर्माण होता है। उससे पहले हमने जो देखा कि जो आपका जो हिमानी द्वारा यानी जो ग्लेशियर कैसे जो है अपना कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर जो है हमें पवन द्वारा निर्मित जो है संस्कृतियों के बारे में हमें जानने को मिलेगा कि पवन जो है कैसे अपना जो है कार्य करता है, यानी हवा का क्या स्थान होता है, ठीक है, जो है इनको संस्कृतियों के निर्माण में। तो कहते हैं पवन उस स्थान से धूल और रेत को कणों को जो है उड़ा कर ले जाती है जहाँ ये सूखी अवस्था और वनस्पति जो आवरणविहीन होती हैं। यानी देखिए हवा जो है इन मिट्टियों को वहाँ से उठा कर ले जाती है जहाँ पर जो है
सूखा ज़मीन होता है या जहाँ पर जो है कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं, ज़मीन खाली होता है, तो उस स्थान से जो है पवनों जो है उन मिट्टियों को उठा के ले जाती है जहाँ पर वनस्पति विहीन होते हैं यानी वनस्पति नहीं होती हैं। ये अवस्थाएं विश्व के मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में और रेतीले समुद्र तटों पर पाई जाती है। तो ये तो जनरली आपने देखा भी होगा कि सबसे अधिक देखा जाए तो मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस तरह के जो है घटनाएं देखने को साफ मिलती है। तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट बात रहता है। आगे हमारा है पवन द्वारा अपर्दन। देखिए पवन द्वारा अपर्दन कैसे होता है। पवन के अपर्दन के कार्य में 3 प्रक्रियाएं शामिल होती है। ये आपको समझ होना चाहिए कि पवन जो होती, जो हवाएं होती हैं, जो मिट्टी के अपर्दन करती है, तो इसके कार्य में 3 प्रक्रिया शामिल होती है। ये प्रक्रियाएं हैं अपघर्षण, सन्निघर्षण, अववाहन। यानी ये 3 प्रक्रिया जो है कई मायने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पवन का अपर्दन कार्य उसके साथ उड़ाते हुए रेत और धूल कणों द्वारा होती है। ठीक है, ये कण धरातल से कुछ मीटर की ऊंचाई तक ही सीमित रहते हैं। पवन में विद्यमान बालू कण अपने मार्ग में आने वाले शैलों को जो है घिस कर, खुरच कर काटती और छांटती रहती है। क्योंकि अगर बहुत तेज़ पवन चलेगी, हवा तेज़ चलेगा, तो जर्नल सी बात है कि बड़े बड़े शैल होते हैं, बड़े बड़े रॉक होते हैं, उसको ज़रूर घिसेगा, खुरचेगा और काटती हुई आगे बढ़ेगा। इस प्रक्रिया को जो है अपघर्षण कहते हैं। यानी उसको घिस कर, खुरेच कर काटती है, इस प्रक्रिया को हम अपघर्षण कहते हैं। लेकिन जब वे बालू के कण स्वयं आपस में टकरा कर छोटे, चिकने और गोल होते चले जाते हैं, तब इस क्रिया को हम धनिक संघर्षण कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया है कि बालू के कण स्वयं आपस में जो है टकराते रहते हैं और छोटे, चिकने और गोले होते चले जाते हैं, तो इसको हम जो है धन संघर्षण कहते हैं। पवन द्वारा असंगठित पदार्थों को उड़ाकर ले जाने की क्रिया को अववहन कहते हैं। यानी अपने साथ ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अववहन। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना, अववहन कहते हैं इसको। आगे जो हमारे समक्ष पवन अपर्दन से बनी संस्कृति है। देखिए जो पवन यानी हवा की जो अपर्दन हुई है उससे कैसा जो है संस्कृति बनती है, तो ये भी जानना बहुत रोचक होगा। पवन अपर्दन द्वारा बने कुछ जो है असल कृतियाँ इस प्रकार हो सकती है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है छत्रकल शैल। अब छत्रक शैल क्या होते हैं, तो ये भी जानना आपके लिए रोचक रहेगा। जब पवन ऐसे शैलों का जो है अपघर्षण करती है जिनमें मुलायम और कठोर जो है परतें एक के ऊपर एक बिछी होती है, तब उस शैल में जो है अपर्दन एक सामान्य नहीं होता है। मुलायम परतों को जो है अपर्दन आसानी से हो जाता है, जबकि कठोर परतों इतनी जल्दी नहीं काटती है। पवन के द्वारा शैलों के आधार के निकट अधिक अपर्दन होने के परिणाम स्वरूप शैल का एक जो है स्तंभ साफ बन जाता है। क्योंकि अगर ऐसा प्रक्रिया रहा तो कहते हैं जब कठोर परतें अपनी जल्दी नहीं कटती है और अपने द्वारा शैलों के आधार के निकट अधिक अपर्दन होने के परिणाम स्वरूप जो है शैलों का स्तंभ बनना एक स्वाभाविक बात है, जिसकी आकृति एक छत्रक या एक खुम्भी जैसी होती है। इसलिए शैलों की ऐसी कृतियों को हम छत्रक शैल कहते हैं। तो इसका नाम जो है इसकी आकृति कारण जो है छत्रक शैल कहते हैं। छत्रक शैल के आधार के निकट जो है अपर्दन इसलिए अधिक होती है क्योंकि बालू और धूल कण पवन द्वारा उड़ाए जाने पर भी धरातल के निकट अधिक मात्रा में रहते हैं। यानी उड़ा ले जाने के बाद भी काफ़ी मात्रा में जो होता है वहाँ पर जो है बालू कण रहते हैं। ऐसी कृतियाँ सहारा मरुस्थल में अधिकतर पाई जाती है और जोधपुर के निकट भी छत्रक शैली देखी जा सकती है। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम के रिगार्डिंग भी हो सकता है कि ऐसे कृतियाँ सहारा मरुस्थल से अधिकतर पाई जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जोधपुर में भी पाया जाता है। ठीक है, जोधपुर के निकट जो है छात्र शैली देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो है छत्रक शैल दिख रहा होगा, जिसको हमने इंग्लिश में जो है मशरूम जो है रॉक पढ़ा था। देखिए मशरूम के आकार का ही है, लेकिन यहाँ पर भी हिंदी में बहुत आपको कठिन होगा समझना, इसको छत्रक कहते हैं और इंग्लिश में आपने इजीली मशरूम के नाम से जान गए थे, समझ गए थे। तो इसका आकार एकदम मशरूम जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, और इसको जो है हिंदी में हम छत्रक शैल कहते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष पवन द्वारा अपर्दित वेसिन। देखिए ये पवन द्वारा जो है अपर्दित वेसिन आता है इसके अंतर्गत। तो ये वास्तव में एक प्रकार के गत है जिसका निर्माण पवन की अववाहन की क्रिया द्वारा होता है। कहते हैं आंधियाँ ऐसे स्थानों से रेत और धूल कणों को उड़ाकर दूर ले जाती है।
ऐसे गत या बेसिन अववाहन की लगातार क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। कहते हैं मिस्र देश का जो है क्वेतारा गत इस प्रकार के गतों का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आप समझ सकते हो कि ये वास्तव में एक प्रकार के गत है जिसका निर्माण पवन के अववाहन क्रिया द्वारा होता है और ऐसे स्थानों से रेत को जो धूलकण उसको उड़ाकर दूर ले जाते हैं। इसको अगर डायग्रामेटिक देखें तो ये बहुत काफ़ी आसान बन जाएगा। देखिए डायग्राम में भी ये समझना बहुत ही आसान है। पवन द्वारा अपरदित बेसिन, यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कि पवन अपरदित बेसिन जो है गड्ढा के नुमा आपको दिख रहा होगा और ये शुष्क क्षेत्र होते हैं। तो शुष्क क्षेत्र में जो होते हैं मिट्टियाँ सूख जाती है, जनरल सी बात है। और यहाँ पर अगर तेज़ हवाएं चलेगी तो जो है पवन जो है अपने साथ मिट्टियों को ले जाना एक स्वाभाविक बात रहेगा। तो इस चित्र में भी यही बात दर्शाने की कोशिश किया गया है कि कैसे जो है पवन अपरदित बेसिन यहाँ पर बना है, यानी यहाँ से जो है मिट्टी ले जाने की प्रक्रिया जो है पुण्य हुई है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है पवन द्वारा परिवहन। देखिए पवन द्वारा परिवहन किस प्रकार होता है। शुष्क प्रदेशों में पवन परिवहन का एक महत्वपूर्ण कारक रहा है, यानी शुष्क प्रदेश देखा जाए तो ये तो जनरली सी बात है, जहाँ सूखा रहेगा वहाँ मिट्टी का जो है बिल्कुल ही ढीला होना स्वाभाविक बात है। तो शुष्क प्रदेश इसके लिए जो है अच्छा कंडीशन होता है। तो शुष्क प्रदेशों में पवन परिवहन का एक महत्वपूर्ण कारक बनता है और पवन उड़ाए गए पदार्थों को बहुत दूर ले जाकर धरातल पर बिछा देती है। और ऐसे क्षेत्र जो होते हैं धूल कण और मूल स्थान के काफ़ी दूर होते हैं। पवनें जो है गोभी की मरुस्थल के धूल कणों को उड़ाकर चीन के उत्तरी भाग तक ले जाती है। हमारे देश में भी थार मरुस्थल की ओर से चलने वाली पवनें धूल के कणों को पश्चिम उत्तर निकटवर्ती हरियाणा और पंजाब तक ले जाती है और यह परिवहित पदार्थ उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों में निक्षेपित हो रहा है। तो ये कहते हैं ये पवनें जब चलती हैं तो वो कोई सीमा नहीं देखती है, ना ही कोई बाउंड्री देखती है, क्योंकि ये अगर कहते हैं अगर भारत से ले जाकर अगर चाइना के साइड ले जाता है तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये काफ़ी जो है तेज़ चलने वाली हवाओं में से थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष पवन द्वारा निक्षेपण। देखिए पवन द्वारा निक्षेपण कैसे होता है। पवन द्वारा उड़ाए गए पदार्थ कुछ जो है परिस्थिति विशिष्ट इसके मार्ग में कुछ विशेष स्थानों पर जमा होने लगती हैं और ये परिस्थितियाँ निम्नलिखित होती है। तो पहला परिस्थिति तो हमारे समक्ष यही आता है कि पवन में बालू या धूल कणों की मात्रा जब उसकी परिवहन क्षमता से अधिक हो जाती है तब उसके कुछ भाग का जो है निक्षेपण कर देती है और ये वही पदार्थ होते हैं जो पवन की परिवहन क्षमता से अधिक होता है। यानी देखा जाए तो पहला पॉइंट साफ शब्दों में बताने के लिए पर्याप्त था कि जो है पवन में बालू और धूल कण की मात्रा अधिक होती है और ये कुछ भाग तक निक्षेपित करती रहती है। ये पदार्थ बहुत होते हैं जो पवनों के परिवहन क्षमता से अधिक होती है। दूसरी बात यही दर्शाती है कि पवन का वेग कम होने के साथ ही उसकी परिवहन क्षमता भी घट जाती है और इस प्रकार पवन में जो है निलंबन पदार्थ जमा होने लग जाता है। यानी पवन का वेग जो है कम होने के साथ ही उसकी परिवहन क्षमता भी घट जाती है और इस प्रकार पवन में निलंबित पदार्थ जो है जमा होने लग जाती है। तीसरी पॉइंट यही दर्शाता है कि मार्ग में अवरोध आने पर पवन को ऊपर उठना पड़ता है और जब यह ऊपर उठती है तो इसका वेग घट जाता है, तब यह अपने भार को जो है गिराना शुरू कर देती है और यह पदार्थ अवरोध के निकट एक टीले के रूप में जमा हो जाता है। तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आ जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष पवन निक्षेपण से बनी असल कृतियाँ। कहते हैं पवन निक्षेपण कार्य से बनी कुछ असल कृतियाँ का विवरण यहाँ पर दिया गया है। पहला है हमारा बालू की टीले। देखिए बालू के टीले पहला है और बालू के टीले में क्या है, बालू के टीले मरुस्थलीय प्रदेशों का विशेष लक्षण होता है। यानी अगर मरुस्थल क्षेत्र में आप जाओगे तो यहाँ बालू के टीले आपको देखना एक स्वाभाविक बात हो जाता है और ये विभिन्न प्रकार और विविध आकृतियों के हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार विविध आकृति का होना एक स्वाभाविक बात है और इसके निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जो होते हैं उपलब्ध बालू की मात्रा, पवन की दिशा और शक्ति, पवन के मार्ग में आने वाले अवरोध जैसे झाड़ी, पत्थर या कोई जमित जीव। जब तक जो है पवन बालू को उड़ाने में समर्थ होती है तब तक जो है टीले स्थायी नहीं होते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर खिसकते रहते हैं। यदि टीलों पर वनस्पति या पेड़ उग जाते हैं तो ये स्थिर हो जाते हैं। जब भी कोई पहाड़ी इन टीलों का रास्ता रोक लेती है तब भी ये स्थिर हो जाते हैं और यदि इनके मार्गों में कोई अवरोध नहीं होता है तो रेत की ये टीले खिसकते खिसकते जो है कृषि भूमि या मैदानों और बस्तियों की ओर जो है धकेल के ले जाते हैं। तो
तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर रेत टीले की अगर हम देखें तो मुख्य ये दो प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं इनके दो प्रकार कौन है रेत टीले के। पहला हमारे समक्ष है बरखंड। देखिए पहला जो है बरखंड है। बरखंड क्या है? कहते हैं असंगठित बालू के पृथक ढेर बालू की टीलों के एक सामान्य प्रकार है, जिसमें जो है बरखंड या अर्ध चंद्राकार टीले कहा जाता है। इसको अर्ध चंद्राकार टीला भी कहते हैं। और इस प्रकार के टीले के किनारे जो है अर्ध चंद्राकार होते हैं और इसके शीर्ष की दिशा जो है पवन प्रवाह की ओर होती है। वायु चलने वाली दिशा में बालू का ढाल जो धीमा या हल्का जो है घुमावदार हो जाता है और ये सहारा मरुस्थल भारी संख्या में पाई जाती है। तो ये जनरली सी बात है कि थार जो है सहारा मरुस्थल में ये अधिक अमाउंट में पाई जाती है। जैसे कि हम यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें बरखान और इसकी सकरना, यानी आप देखोगे कि रेत हवा चलने की वजह से जो है एक चंद्राकार रूप धारण कर लिया है। अब यहाँ पर देख रहे होगे वायु की दिशा, तो वायु की दिशा ऐसी होती है, ठीक है, और यहाँ सिंह होती है, तो ये दो जो है चंद्राकार आकृति बना लेती है। अगर हम दूसरे जो है डायग्राम में देखें तो भविष्य में बरखान की स्थिति, भविष्य में जो होता है कुछ जो है यहाँ भंबर आप लिखा हुआ दिख रहा होगा, इस तरह से जो है रेत की जो है वायु चलती है। पवन की प्रवाह जो होती है जहाँ एरो दिखाया गया है उस प्रकार से होती है। तो इस तरह से जो है ये अपना जो है आकृति को बदलता रहता है। उसके पश्चात दूसरा जो है सीफ यानी अनुदैर्ध्य टीले। सीफ टीले या अनुदैर्ध्य टीले बालू के संग्रह और लंबे कटक जो पवन के समांतर दिशा में दूर तक फैले रहते हैं, सीफ या अनुदैर्ध्य टीले कहलाते हैं। सीफ या अनुदैर्ध्य टीले कहते हैं। पवन इन टीलों के बीच से सीधा और समांतर बहती रहती है तथा इनमें गिरने वाले बालू को जो उड़ाकर उन्हें साफ रखती है, लेकिन पवन के प्रवाह में कुछ भंबर बन जाते हैं जो द्रोणियों के पार्श्व की ओर बहकर वहाँ जो है बालू का निक्षेपण करते रहते हैं, जिससे इन संकरों और लंबे जो है टीलों का निर्माण होता है। भारत में थार मरुस्थल के पश्चिम भाग में ये टीले सामान्य रूप से पाए जाते हैं, यानी सीप अनुच्छेद जो है कई क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये सबसे अधिक जो है भारत में थार मरुस्थल के पश्चिमी भाग में टीले मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर जो है सीप टीले आपको दिख रहा होगा दोनों डायग्राम में। तो ये डायग्राम बहुत विशिष्ट है और अब इसमें क्लैरिटी भी आपको आ जाएगा। पहले डायग्राम में आपने देखा होगा कि इसको एरो के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है सीप को, दूसरे में जो है इसको एक जो है उठता हुआ भी दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें रेत की जो है दोनों तरफ जो है पवने की दिशा दर्शाई गई है और ये पवने जो है एक जो है स्लैंट जो है हाइट की तरफ बन जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष लोयस। लोयस जो है तीसरा है। कहते हैं विश्व के धरातल का एक काफ़ी बड़ा भाग पवन द्वारा निक्षेपित गाद से ढका हुआ होता है, यानी पवन द्वारा निक्षेपित जो गाद होता है उससे ढका हुआ होता है और यह निक्षेपण हजारों वर्षों से धूल भरी आंधियों के कारण हुआ है। यानी धूल भरी आंधी जब चलती है तो इस प्रकार के जो है प्रॉब्लम आती है और यह पदार्थ ही जो है लोयस के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी विशिष्ट बात आती है यहाँ पर। कहते हैं नदी के बहाव या जो है सड़क निर्माण के कारण उधर जो है कगारों के पास लोयस आसानी से अलग हो जाती है। जब वनस्पति आवरण हट जाता है तब भी यह जो है मतलब नदी नालों द्वारा जो है आसानी से अपरदित हो जाती हैं और इससे जो है गहरी खाइयाँ बन जाती है और इस प्रकार के विशाल निक्षेप चीन के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। यानी चीन के उत्तरी भाग में कई मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ इसकी परतों की मोटाई सामान्यतः 30 मीटर तक होती है, यानी 30 मीटर तक जो है इसकी जो है परतों की जो है मोटाई हो सकती है। कुछ स्थानों पर इसकी गहराई जो है 100 मीटर तक मापी गई है और इस मेरुदंड के निक्षेपण उत्तरी सीमा के अलावा उत्तरी अमेरिका में जो है मिसिसिपी नदी की घाटी है। कहते जर्मनी, ब्राज़ील या फ्रांस में जो है मध्य यूरोपियन जो है उच्च भूमि के उत्तर में पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी लोयस जो है निक्षेपण मिलते हैं। तो यहाँ पर साफ हो गया है कि पवन के निक्षेपण कार्य से जो है बालू के टीले, बरखंड, सीफ टीले और जो है गोलेस नामक स्कृतियों का निर्माण होता है। तो पवन के द्वारा कौन कौन चीज़ों का निर्माण होता है दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि बालू के टीले होते हैं, बरखंड, सीफ टीले और जो है लोयस नाम के स्थलकृतियों का निर्माण होता है। तो आप इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहेगा, ना ही कोई प्रॉब्लम रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसमें से दो बातें भूलने वाली नहीं है। एक ये कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है
और दूसरी बात ये रहता है कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लेने में ही आपके फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि तिरपान नेसेसिटी सेंटर जो है विस्तृत है और सभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर है। अगर आप तिरपान नेसेसिटी सेंटर का फ़ायदा उठाना चाहते हो चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर बाद में अगर कोई टॉपिक रिसर्च करोगे तो आपको तिरपान नेसेसिटी सेंटर द्वारा बनाया गया नहीं प्राप्त होगा, उस जगह जो पहले से यूट्यूब पे मौजूद है वो प्राप्त होगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको होम पेज मिल जाएगा जहां पर सारे आपके वीडियो जो है आपके प्रतीक्षा कर रहा है। आप उसको सोचिए, समझिए एवं विचार कीजिए।